So hello everyone. So this is the second question of control system based on the root locus plot, and here we have to calculate the value of gain k at point A. At this point A, we have to calculate the value of gain k. So जो basic definition है root locus का, that it describes the movement of the poles of the closed loop transfer function for the different values of gain of open loop transfer function. मतलब जो OLTF का जो गेन है that is the k, उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स का किस तरह से मूवमेंट होता है वो बेसिकली रूट लोकस प्लॉट डिस्क्राइब करता है. सो and we have to find that value of gain k at this point A, right? So this point is lying on the root locus, right? So it will satisfy the magnitude condition because every point lying on the root locus satisfy the magnitude condition. So basically we have to first find out the coordinate of this point here. That means its imaginary axis coordinate, this one, and its real axis coordinate, this one. Then we will apply the magnitude condition. So first of all, as we can see here, जो OLTF होगा इसका basically वो क्या होगा, that is k upon s plus 4 and s plus 8, because there are 3 poles and there are no zeros, as we can see here. So 3 poles are there and there are no zeros, and whenever poles are greater than zeros, asymptote is equals to p minus of z, that is 3. So 3 asymptotes are there, as we can see here. These are the asymptotic lines, this one, and एक जो asymptote है वो इस 180 डिग्री लाइन के क्रॉस जा रहा है. एंड 3 asymptotes का मीनिंग ये है कि जितने asymptote होते हैं उतने ही वर्चुअल जीरोस होते हैं. एंड जो रूट लोकस होता है वो ऑलवेज ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है एंड ओपन लूप जीरो पे जाकर एंड होता है, एज वी कैन सी. एंड जो एंगल होते हैं asymptotes के, जब 3 asymptotes होते हैं, सो इट इज 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री. So now what we want to do here is we want to calculate the value of s at point A, right? इस पॉइंट पे s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर इस OLTF में सिंपली पुट कर देंगे. देन वी विल अप्लाई द मैग्नीट्यूड कंडीशन एंड विल इक्वेट इट to 1 because this is the magnitude condition. So ये बेसिकली CLT के पोल्स यहाँ पर जो इस रेंज में जो पोल्स लाई कर रहे हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं, बिकॉज रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होते हैं वो एक सेकेंड ऑर्डर के अंडरडैम पोल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेकेंड ऑर्डर अंडरडैम सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये जो पोल्स लाई कर रहे हैं इस पॉइंट ए पर. तो बेसिकली ये सेकेंड ऑर्डर अंडरडैम पोल है ये, राइट, अंडरडैम पोल. और एक सेकेंड ऑर्डर अंडरडैम पोल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट कोऑर्डिनेट्स, फॉर दोस कोऑर्डिनेट्स वी शुड हैव अ, एक्चुअली वी शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट दैट. सो लेट्स सी दिस. सो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर के अंडरडैम पोल होते हैं. इसका जो रियल कोऑर्डिनेट होता है दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन एंड दिस कोऑर्डिनेट इज जे ओमेगा डी. ये दिस वी शुड नो दिस, राइट. तो एंड और ये जो रेडियल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बेसिकली ओमेगा एन होता है, विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एंड नाउ हाउ इट इज ओमेगा एन. ये ओमेगा एन क्यों होता है, बिकॉज ये बेसिक सा डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है. जैसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज जीटा ओमेगा एन, राइट. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओमेगा डी. सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द बेस, दिस इज द perpendicular and this is nothing but the hypotenuse, right, इस triangle के अंदर. so ये hypotenuse will be equals to perpendicular square plus base square and root. and यहाँ पर ये जो omega d है which is the damped frequency which is equals to omega n and root of 1 minus zeta square, right. yeah, so omega d square will be equals to omega n square when we multiply inside, so omega n square minus of zeta square omega n square. so इसके according it will be perpendicular जो था it is omega d square, it is omega n square minus of zeta square omega n square, and base जो था that is zeta square omega n square. तो ये सिंपली कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये ओमेगा n रेडियस हो गया. ये बेसिकली फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया. सेकंड, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये अंडरडैम पोल लाई कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर क्या लाई करता है, एक अनडैम पोल लाई करता है. उसके कोऑर्डिनेट जे ओमेगा n माइनस जे ओमेगा n होते हैं. This also we should know. ये अनडैम्प पोल है, this is the अनडैम्प पोल. ये अनडैम्प पोल है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस पे जब कोऑर्डिनेट्स पोल होते हैं जीटा इक्वल टू 0 होता है, ये बेसिकली अंडरडैम्प है. दिस इज द अंडरडैम्प पोल, दिस इज द अंडरडैम्प पोल.
एंड हेयर द जीटा का जो रेंज होता है डेट इज 0 to 1 के बीच में होता है। एंड फिर यहाँ पर क्रिटिकली डैम सिस्टम लाई करता है, मतलब क्रिटिकल डैम सिस्टम के पोल्स लाई करते हैं, डेट इज नेगेटिव एंड इक्वल रियल रूट्स माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, ये दिस वन critically damped system zeta is equals to exactly 1. So as we can see here, ये जो distance है यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance is omega n, this is omega n, so ये overall जो लोकस है पूरा इट इज ऑफ रेडियस ओमेगा एन, ये ओमेगा एन के रेडियस भी बना हुआ है लोकस है, राइट। सो यही बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जैसे गिवन है, तो ये बेसिकली जो लोकस है ना ये पूरा ये ओमेगा एन का ही रेडियस के लोकस है, मतलब ये जे ओमेगा एन है बेसिकली कोऑर्डिनेट आपको जो गिवन है, दिस इज द जे ओमेगा एन। सो ये डिस्टेंस भी 0.5 ही है, राइट, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस जीटा ओमेगा एन एंड दिस इज जे ओमेगा डी। सो नाउ यस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इस इट इज थीटा, ये basically angle of inclination है, this is the angle of inclination theta, this is the angle of inclination, and इसका जो cosine होता है that is cos of theta, it will be simply base upon hypotenuse, right, base is zeta omega and hypotenuse जो भी calculate किया that is omega n, so cos of theta is equals to zeta, ये भी आपको पता होना चाहिए, this one cos theta is equals to zeta। तो जो यहाँ पर ये given है आपको 60 डिग्री, this is the angle of inclination, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, so we have given the theta as zeta, oh sorry, theta is equals to 60 degree, so cos theta will be equals to zeta, so cos 60 that is half, so zeta is equals to half, right। so ये तो zeta की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, right, and omega n is also given as half, right, omega n is also half, वो जो रेडियल डिस्टेंस है, तो एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट हो गया डेट इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ऑफ जे ओमेगा डी, जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बेसिकली ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, डेट इज half into half, that is minus 1 by 4 and plus j omega d, we have to calculate, so it will be omega n and 1 minus zeta square, omega n जो है यहाँ पर half है and zeta square that is 1 minus half, right, ये 1 minus half हो जाएगा, that is रूट 3/4 हो जाएगा, 3/4 एंड अंडर रूट, सो रूट 3/2 हो जाएगा, ये बेसिकली रूट 3/2 एंड ये ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगा डेट इज रूट 3/4, दिस इज द ओमेगा डी, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/4 प्लस रूट 3/4, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट एस का। नाउ वी हैव टू अप्लाई द मैग्नीट्यूड कंडीशन, सो यहाँ पर अप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। So magnitude condition is जो OLT given है that is g of s that is equals to k upon s plus 4 and s plus of 8। So यहाँ पर we have to put the value of s is equals to minus of 1/4 plus j root 3/4, so k upon minus 1/4 plus j root 3/4, right। अब when we put here minus 1/4 plus j root 3/4 plus of 4, तो 4 minus 1/4 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा that is 16 minus 1 that is 15/4 plus of j root 3/4, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम ही है कि 8 minus 1/4, तो 8 minus 1/4 that is 32 minus 1 31/4 plus j root 3/4, ये बेसिकली। अब नाउ वी हैव टू, अब इसके बाद अपन को मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करनी है। नाउ मैग्नीट्यूड कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट, इस तरह से इन तीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा। सो व्हेन वी अप्लाई द मैग्नीट्यूड कंडीशन इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द मैग्नीट्यूड कंडीशन, राइट। सो जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/4 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट ऑल्सो, फिर सिमिलरली यहाँ पर 15/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/4 होल स्क्वायर अंडर रूट एंड 31/4 होल स्क्वायर प्लस रूट 3/4 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो इस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ये नाउ ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, सो ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो है वो तो हाफ आएगा, यहाँ पर हाफ, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है।
एंड दिस विल बी 3.774 आ रहा है ये वैल्यू, एंड यहाँ पर ये वैल्यू आएगा 7.76 ऑफ 2. दिस विल बी इक्वल्स टू 1. सो इसके अकॉर्डिंग जो k का वैल्यू आएगा दैट इज ये 0.5 इंटू 7.762 इंटू 3.774. So this value will be equals to 14.647. ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेट इतना ही वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये वैल्यू ऑब्टेन होगा 14.467. सो ये बेसिकली इस तरह से आंसर है इस क्वेश्चन का. द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू राइट. नाउ ये तो फर्स्ट मेथड हो गया. नाउ सेकंड मेथड. देखिए सेकंड मेथड भी इंटरेस्टिंग है. और सेकंड मेथड, अगर आपको ये जीटा ओमेगा एन और इन सब के थ्रू नहीं जाना है तो वी कैन सी हियर. देखिए यहाँ पर ये जो O2A का जो सेगमेंट है, येलो कलर बेस्ट है. सो ये जो O2A का जो सेगमेंट है यहाँ से ये है ना. सो इसको एज अ वेक्टर के फॉर्म में अगर देखें तो OA वेक्टर मतलब ये O2A का एज अ वेक्टर के फॉर्म में देखें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है 0.5. और वेक्टर का एंगल कितना है? वेक्टर का एंगल ये होगा. ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था. नाउ दिस इज द वेक्टर एंगल. अब ये 60 डिग्री है, सो दिस इज 120 डिग्री राइट. तो इसको एज अ वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो ये बेसिकली OA जो है ना ये वेक्टर, तो इट विल बी किसी ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को एज अ उसके मैग्नीट्यूड एंड एज अ एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द पोलर फॉर्म. ये बेसिकली पोलर फॉर्म होता है ना. पोलर फॉर्म को वी कैन इजीली कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म? दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू पावर j एंगल वही वो. हाँ राइट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को वी कैन इजीली कन्वर्ट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा और e टू पावर j थीटा दैट इज cos थीटा. और ये जो एंगल था वो 120 डिग्री था राइट. एंगल सो cos 120 डिग्री प्लस j साइन ऑफ 120 डिग्री इस तरह से. और जो मैग्नीट्यूड था इट इज 0.5 और cos 120 डिग्री इट इज माइनस ऑफ हाफ होता है एंड j साइन 120 डिग्री इट इज साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है दैट इज √3/2. so ये this is nothing but half. So you can see here the coordinate is -1/4 plus j √3/4. so इस तरह से भी coordinate निकाला जा सकता है. then इसके बाद again we have to apply the magnitude condition. इसके बाद again we have to apply the magnitude condition और उसके बाद सेम ही आंसर आएगा as you can see here. so these can be the methods to solve a problem like this. so काफी गुड क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग तो ये. एंड सेम ही टाइप का मतलब ऐसा क्वेश्चन आई थिंक गेट 2014 के अंदर आया था. सो ऐसी बातें मतलब होती रहती है एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो. बस वहाँ से डायरेक्टली जीटा की वैल्यू गिवन थी, मैंने इसको एज एंगल के फॉर्म में दे दिया ताकि यू शुड नो. एक्चुअली ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कॉस थीटा, कोऑर्डिनेट एंड ऑल ये दिस. और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस. तो ठीक है. ओके, थैंक यू.